Good morning to all. Today, I, Preeti Gupta, give a lecture on RB insertion. This is a topic of DA. I have already placed my presentation on different topics, design analysis of algorithm. Today, we are going to talk about the RB tree insertion. We have already discussed the algorithm of RB tree insert. Basically, RB tree insertion is used to insert various nodes into an empty RB tree. RB tree is nothing. RB tree is just like a binary search tree in which we insert the node one by one. The tree insertion is similar to binary search tree, but the difference in between RB tree insertion and binary search tree insertion is that the color attribute is added into the RB tree insertion. As we add the color in RB tree, the RB tree become unbalanced, or you can say imbalanced, when we add a new node into the RB tree. So it is required to balance the RB tree. To fix the RB tree property, we have this algorithm. You have already seen the algorithm of the cases 1, case 2 and case 3. How we fix up the algorithm. For example, let me discuss the algorithm. First of all, tree insert t dot x. X, what is x? X is a newly inserted node, जो हम नया node add कर रहे हैं, and t is a tree. ठीक. Color of x is red, means the newly inserted node, the color of newly inserted node is always red. After inserting a new node into the RB tree, it may happen the property of the RB tree does not fix, means the RB tree property violate. So in that case, it is required to fix up the property of RB tree, because RB tree have some 5 properties. ठीक है, तो उन 5 properties को fix करने के लिए हम ये सारे cases को use करते हैं. These are 3 cases, case 1, case 2 and case 3. This is in form of algorithm to make it simple, so that it is easy to understand or easy to implement. I am just explaining these cases in written form. That when the node's color as this, तो हमें क्या करना चाहिए? When node color is this, तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, तो these cases are nothing another thing of this algorithm. These are just written form of the algorithm. ठीक है, जो आपकी बुक में या जो आप बेसिक एल्गोरिथम देखेंगे, द एल्गोरिथम इज रिटन ओनली फॉर द लेफ्ट चाइल्ड. ठीक है, व्हेन द नोड इज एडेड एट द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द ट्री, देन these 3 cases are applicable. When we want to add a node as a right subtree, these cases are different. We change the color, we change the left node with the right node and right node with the left node. तो ये case 1, case 2 और case 3 जो है according to that change हो जाएंगे. इसीलिए मैंने यहाँ 2 तरह के केस बनाए हैं. यहाँ जैसे कि Z is the left child of its parent, when the Z is the left child of its parent, and when Z is the right child of its parent. आप जब भी अपनी एल्गोरिथम देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको केवल Z is the left child of its parent के लिए ये 3 केसेस देखने को मिलेंगे. बट अगर Z is the right child of its parent होगा तो हमें क्या करना है? तो ये एल्गोरिथम यहाँ पर नहीं लिखी हुई है. इस एल्गोरिथम को जस्ट हमें मॉडिफाई करना है. लेफ्ट को राइट से रिप्लेस कर देना है और राइट को लेफ्ट से रिप्लेस कर देना है. बस इतना ही काम हमें यहाँ पर करना है. ठीक है, तो दीज आर द केसेस. इन केसेस को आपको याद करना पड़ेगा, या जितना ज्यादा आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जितना ज्यादा आप एक्सरसाइज में लाएंगे, उतना ज्यादा आपको ये काम में या हेल्पफुल हो सकेगा. उतना ज्यादा आपको खुद भी पता चल जाएगा कि हमें ये इंसर्शन किस तरह से करना है, या फिर आपको फिर
लास्ट ऑप्शन क्या बचता है कि आपको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज और, बेसिकली हमें इन सभी काम को करने के लिए दो चीज करनी पड़ती है, एक तो है लेफ्ट रोटेशन और दूसरा है आपका राइट रोटेशन। तो लेफ्ट रोटेशन एंड राइट रोटेशन इज सिमिलर टू एज यू स्टडीड इन एवियल सर्च ट्री। एवियल सर्च ट्री में भी आपने ट्री को बैलेंस करने के लिए रोटेशन परफॉर्म किया था कि कैसे हम इसमें रोटेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल इट इज वेरी क्लियर हाउ द इंसर्शन in the RB tree is to be performed, ठीक है। तो अब हम यहां देखते हैं, insert the following element, this is a question, insert the following element in initially empty RB tree means कि एक RB tree दे रखी है जो कि initially empty है and we have to add these element 10, 5, 15, 25, 20 and 30 into the initially empty RB tree. Okay, fine. Let's see this example. Okay. So, initially the RB tree is empty. We have no element in the RB tree. Fine. Initially we have to add the element into the RB tree, ठीक है। What will be the solution and how we are going to insert these element into RB tree, ठीक है। First of all, this node number 10 and this node number 10, ठीक, the name of this node is Z. Let we see, first we see this cases. If red node Z is the left child of its parent, if root node is red, if the root node is red, the color of root node is changed to black. इसका क्या मतलब है? अब हम केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। If root node is black, for example, कि आपके पास कोई ऐसा नोड आ गया कि ये रेड नोड आ गया, किसी तरह से आपने कुछ किया एंड इनिशियली हमने जैसे अभी 10 नोड ऐड किया है, दिस 10 नोड एंड दिस नेम इज Z, ठीक है। दिस इज अ इनिशियल नोड एंड दिस इज ओनली नोड इन द RB ट्री एंड द कलर ऑफ द नोड इज Z बिकॉज एवरी न्यूली इंसर्टेड नोड कलर इज ऑलवेज रेड। तो हमने यहाँ पर 10 को ऐड किया एंड 10 कलर इज Z, बट 10 इज ऑल्सो a root node. According to the property of RB tree, the color of root node is always black. अगर हम उस प्रॉपर्टी को ले और इस केस को ले तो दोनों एक दूसरे के से अलग है। तो अगर रूट नोड पर रेड कलर आ गया तो कलर ऑफ रूट नोड इज सिंपली चेंज टू ब्लैक। तो हम सिंपली इस रेड नोड को ब्लैक कलर में चेंज कर देंगे, ठीक है। अगर आपके पास एक सिंगल नोड है और वो सिंगल नोड रूट नोड है तो हम उस नोड के कलर को सिंपली ब्लैक में चेंज कर देंगे विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट एनी बॉदरिंग, ठीक है। नेक्स्ट, इफ Z's अंकल इज रेड। अब हम इस चीज को अब एग्जाम्पल में 1 by 1 नोड को ऐड करेंगे तो सिंपली यहाँ पर हमें पता चल जाएगा। तो अब इस नोड का जो कलर है वो विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी नोड जो है वो ब्लैक में चेंज हो गया, ठीक। नाउ द नेक्स्ट नोड इज 5, ठीक। अब 5 नोड को ऐड करना है तो किस सब ट्री में जाएगा, लेफ्ट सब ट्री में जाएगा या राइट सब ट्री में जाएगा। तो हम सबसे पहले इस 5 को इस रूट नोड से कंपेयर करेंगे, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, वेदर द 5 वैल्यू इज ग्रेटर देन रूट वैल्यू, according to that it goes to the left subtree or right subtree. Okay, now come to this 5, node number 5 is less than 10,
So according to the property of binary search tree, arbitrary is nothing. Arbitrary is a binary search tree with extra property color. तो आर्बिट्री है वो बाइनरी सर्च ट्री ही होता है. बाइनरी सर्च ट्री की ही सारी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेता है विथ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कलर. द कलर कैन बी आइदर रेड और ब्लैक. ये प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे कि पांचों प्रॉपर्टी क्या होती है. अभी हम यहाँ पर इंसर्शन देखते हैं. ठीक है, तो द 5 इज लेस देन द रूट नोड. अब 5 इज लेस देन रूट नोड, तो क्या हो गया, द 5 गोज टू बिकम्स द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट. ठीक है, 5 क्या है, आपका लेफ्ट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट बन गया, बिकॉज 5 इज लेस देन रूट नोड. ठीक, अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी इस ब्लैक नोड का चाइल्ड जो है वो रेड हो सकता है. ठीक है, अगेन तो यहां तक जो इस स्टेज तक है, द आर्बिट्री प्रॉपर्टी डज नॉट वायलेट. आर्बिट्री की प्रॉपर्टी जो है वो वायलेट नहीं कर रही है. अगेन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वी कम टू नोड 15. अब नाउ वी आर गोइंग टू ऐड नोड नंबर 15. फिर हम रूट से ही स्टार्ट करेंगे और ये चेक करते जाएंगे कि 15 जो है वो 10 से बड़ा है या छोटा है. अकॉर्डिंग टू दैट हम इसको ऐड करेंगे. 5 से छोटा है या बड़ा है, अकॉर्डिंग टू दैट हम इसको ऐड करेंगे. ठीक है, नाउ कम 15. 15 इज ग्रेटर देन 10, so 15 goes to the 15 becomes the right child of 10, because 15 जो है वो 10 से बड़ा है, इसलिए इसके राइट चाइल्ड में चला गया. ठीक है, अब 15 का नाम क्या हो गया, 15 का नाम है Z, because newly inserted node is Z. Z is what? Z is newly inserted node. जो भी नया नोड आएगा उसका नाम क्या होगा, Z. तो इस स्टेज तक क्या हुआ, 10 ऐड हुआ, 5 ऐड हुआ और 15 ऐड हो गया. ठीक है, यहां तक क्लियर है. यहां तक अब हम 15 को ऐड करने के बाद फिर से चेक करेंगे कि जो आर्बिट्री की प्रॉपर्टीज हैं क्या वो सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं. आर्बिट्री की ये 5 प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं. ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या है, पहली प्रॉपर्टी है आपकी कि रूट नोड इज ब्लैक. रूट नोड इज ब्लैक. रूट नोड का कलर जो है वो ब्लैक होना चाहिए. दूसरा, एवरी नोड is either red or black. सारे नोड जितने भी आर्बिट्री में नोड हैं या तो रेड कलर के होने चाहिए या तो ब्लैक कलर के होने चाहिए. ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी, द लीफ नोड इज ब्लैक. जो लीफ नोड है वो ब्लैक कलर का होना चाहिए. ठीक है, these are the leaf node. ठीक है, these are the leaf node. And the fourth property is no red node having red child. किसी भी रेड नोड के रेड चाइल्ड नहीं होगा. अगर यहाँ पर 5 रेड कलर का है तो इसका अगर कोई चाइल्ड ऐड होगा तो उसका कलर लाल नहीं होगा. या फिर हम इसको दूसरे टर्म्स में ये भी कह सकते हैं कि no two consecutive red nodes are applicable. No two red nodes are allowed. 2 रेड नोड जो हैं वो अलाउड नहीं है consecutively. ठीक है, and the last property is the number of black nodes
in any direction from root to leaf should be equal. ये जो है शुड बी इक्वल होने चाहिए, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में जो नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स हैं वो सेम होने चाहिए. इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ब्लैक हाइट भी कहते हैं. ब्लैक हाइट, इसको हम ब्लैक हाइट भी नाम देते हैं कि ये जो है आपकी जो ब्लैक हाइट है वो हर तरफ जो है वो सेम होनी चाहिए. ठीक है, तो हर स्टेज पे किसी भी नोड को ऐड करने के बाद हमें इन 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके देखना है. अगर ये पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही हैं तो वेल एंड गुड है. अदरवाइज हमें वो 3 ये जो केसेस हैं, इन केसेस को रेफरेंस में लेकर चेक करना पड़ेगा कि कौन से केस में बिलोंग कर रहा है, और अकॉर्डिंग टू दैट हमें उसमें रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा या रिकलरिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी. ठीक है, तो 15 तक हम आए और 15 तक चेक करने के बाद हमने देखा कि ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं आपकी सेटिस्फाई कर रही हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू नोड नंबर 25. ठीक है, अब हम नोड नंबर 25 के पास गए. पहले हम इसको रब कर देते हैं. ठीक है, अब नोड नंबर 25 के पास आए. फिर से हम चेक करेंगे कि नोड नंबर 25 किस सब ट्री में ऐड होगा. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक whether the 25 is greater than 10 or less than 10. 25 is greater than 10, so it goes to the right subtree of 10. 10 के राइट में गया, इस 15 के पास आया. 15 पे इसने चेक किया कि whether 25 is greater than 15 or less than 15. So now we find that 25 is greater than 15. So we add 25 as a right child of 15. ठीक है, तो 15 के राइट में हमने 25 को ऐड कर दिया. ठीक है, अब यहां पर हमने क्या प्रॉपर्टी, अब हम फिर से देखेंगे कि पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है. तो हम एक एक करके प्रॉपर्टी के पास गए. रूट नोड इज ब्लैक, सेटिस्फाई कर रहा है. एवरी नोड इज आइदर रेड और ब्लैक, तो हर एक नोड या तो रेड कलर का है या तो ब्लैक कलर का है. लीफ नोड इज ब्लैक, लीफ नोड इज बाय डिफॉल्ट ब्लैक. नो रेड नोड हैविंग रेड चाइल्ड, यहां पर आप चाइल्ड लिख लो. नो रेड नोड हैविंग रेड चाइल्ड, तो रेड नोड का कोई रेड चाइल्ड नहीं होगा. तो जब हम यहां गए, हम इसके पास गए, तो हमने देखा कि रेड नोड का रेड चाइल्ड है, मींस 2 कंसेक्यूटिव रेड है. तो दिस प्रॉपर्टी नंबर 4 यहाँ पर आपका क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है. तो ये आर्बिट्री की प्रॉपर्टी को नहीं सेटिस्फाई कर रहा. तो अब हमें इस प्रॉपर्टी को फिक्स करने के लिए अपनी फिक्सअप एल्गोरिथम पे या इन केसेस पर जाना पड़ेगा. ठीक है, तो अब इन केसेस पे जाने के लिए हमें देखना पड़ेगा. सबसे पहले इसका नाम रख देते हैं. इसका नाम है Z. ठीक, इसका नाम है Z, इसका नाम है पेरेंट ऑफ Z, और इसका नाम है पेरेंट ऑफ Z, और ये है आपका अंकल. ठीक है, ये 4 नाम होते हैं. एक Z होता है जो नया इंसर्टेड नोड होता है, ये आपका पेरेंट ऑफ Z है, Z का पेरेंट. दिस इज द ग्रैंड पेरेंट ऑफ Z एंड दिस इज द अंकल ऑफ Z. ठीक है, पेरेंट का भाई जो है वो इसका अंकल है. ठीक, नाउ वी कम टू द केसेस. Z इज द राइट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट, इसके राइट में ऐड हो रहा है. तो Z इज द, यहां कौन सा केस लिखा है, Z इज द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट. बट हमारे केस में क्या है, Z इज द राइट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट, अपने पेरेंट का राइट चाइल्ड है. तो हमें किस केस पे जाना पड़ेगा,
Z इज द राइट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट, अपने पेरेंट का राइट चाइल्ड है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू दैट अब हमें ये पता चल गया कि उन दोनों कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में ये बिलोंग कर रहा है। फिर उसके बाद कैटेगरी में देखने के बाद हम केसेस में गए। केस में क्या लिखा है, जेड्स अंकल वाई इज रेड, जेड्स अंकल वाई, जेड का अंकल वाई जो है वो रेड कलर का है, हाँ ये सेटिस्फाई केस कर गया। तो केस को सेटिस्फाई करने पे क्या हम करेंगे, रिकलरिंग करेंगे, ठीक है। रिकलरिंग बेसिकली इसमें केवल रिकलर किया गया है। तो क्या कहा गया है, कलर ऑफ पेरेंट ऑफ जेड टर्न ब्लैक, कलर ऑफ वाई टर्न टू ब्लैक एंड कलर ऑफ ग्रैंड पेरेंट टर्न टू रेड एंड मेक ग्रैंड पेरेंट एज न्यू जेड, ठीक है। तो जब इसका अंकल वाई रेड होता है तो हम रिकलर करते हैं। तो बेसिकली रिकलर पे क्या बना तुम्हारा, फिर से हम यहां बनाते हैं, ठीक है, दिस 10, ठीक। अब यहाँ पर रिकलरिंग हुई, दैट मीन्स कि पेरेंट ऑफ जेड को यहाँ पर क्या कहा गया, कलर ऑफ पेरेंट ऑफ जेड टर्न ब्लैक। इसका कलर जो कि रेड था हमें उसको ब्लैक में चेंज कर देना है, तो हम ब्लैक कलर को ऑप्ट करते हैं, ये ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। कलर ऑफ वाई टर्न टू ब्लैक, कलर ऑफ वाई टर्न टू ब्लैक, ठीक है। एंड कलर ऑफ ग्रैंड पेरेंट टर्न टू रेड। अब इस ग्रैंड पेरेंट को हमने रेड बना दिया, इन सभी की रिकलरिंग कर दी। जो रेड कलर के थे उनको ब्लैक कर दिया, जो ब्लैक कलर का था उसको हमने रेड बना दिया। और फिर लास्ट में कहा गया मेक ग्रैंड पेरेंट एज न्यू जेड, और इसका नाम हमने जेड रख दिया, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं क्या पिक्चर बनेगी। पिक्चर बेसिकली कुछ इस तरह बनेगी, ये आपका रेड कलर का हो गया, ठीक है, ये आपका ब्लैक हो गया, ठीक है, ये आपका 15 भी ब्लैक हो गया, और ये आपका है 25। जो 25 आपका किस कलर का था, वो अभी भी आपका 10 कलर का था, और इसका नाम जेड हो गया, ठीक है। तो अब ये 10 क्या था, 10 था रूट नोड। यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि हमने इसका नाम चेंज करके ग्रैंड पेरेंट को जेड बना दिया और इसका नाम हो गया जेड। फिर इनिशियली मैंने ये स्टेटमेंट दिया था, इनिशियली ये कंडीशन थी कि अगर जेड किसी भी तरह रूट नोड पर आ जाता है और उसका कलर रेड होता है तो सिंपली हम उसको किस में चेंज कर देते हैं, ब्लैक कलर में चेंज कर देते हैं। सो इट इज सिंपली चेंज टू ब्लैक एंड रिमेनिंग ट्री इज एज इट इज, ठीक है। इसका कलर यहाँ पर आपका 25 हो गया और इसका नाम Z था और ये आपका रूट नोड था। सो आफ्टर इंसर्टिंग 25 द रेड ब्लैक ट्री इज फॉर्म लाइक दिस। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि वो 5 प्रॉपर्टी, जो ये 5 प्रॉपर्टी लिखी है, क्या सेटिस्फाई करती है। चलिए देखते हैं। रूट नोड इज ब्लैक, तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, ठीक। सेकेंड इज एवरी नोड इज आइदर रेड और ब्लैक, एवरी नोड इज आइदर रेड और ब्लैक, दूसरी भी सेटिस्फाई कर रही है। तीसरी है लीफ नोड इज ब्लैक, लीफ नोड ब्लैक होते हैं, कर रही है। चौथी है नो रेड नोड हैविंग रेड चाइल्ड, तो रेड नोड का रेड चाइल्ड नहीं है, तीसरी भी कर रही है और चौथी भी कर रही है। एंड द लास्ट वन इज the number of black node in any direction from root to leaf should be equal। जो ब्लैक नोड्स हैं, हम ब्लैक हाइट बेसिकली चेक कर रहे हैं कि ब्लैक हाइट है वो हर जगह सेम होगी। अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं तो नंबर ऑफ ब्लैक हाइट कितनी है, 1, क्योंकि जितने नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स होते हैं किसी भी डायरेक्शन में रूट को छोड़कर, उसको हम उसकी ब्लैक हाइट बोलते हैं। जैसे कि इस डायरेक्शन में अगर लेंगे तो ब्लैक हाइट जो होगी वो 1 है, इस डायरेक्शन में लेंगे तो ब्लैक हाइट जो है
वो 1 होगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में कितने नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स हैं इसके रास्ते में, इसके रास्ते में केवल एक ब्लैक नोड है, तो ब्लैक हाइट सेम है। तो यानी कि ब्लैक हाइट जो है किसी भी तुम डायरेक्शन में चले जाओ ब्लैक हाइट सेम है। तो इसका मतलब है कि रेड ब्लैक ट्री की जो पांचों प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है। तो ये क्या कहेगा, ये एक बैलेंसिंग ट्री यहाँ पर बन गई, ये आपकी बैलेंसिंग ट्री बन गई। तो अब हम इसको यहाँ ड्रॉप कर देंगे और नेक्स्ट नोड को ऐड करने की तरफ बढ़ेंगे, विच इज 20। अब हमें 20 को ऐड करना है, तो 20 को ऐड करने के लिए फिर से हम चेक करेंगे कि 20 लेफ्ट सब ट्री का पार्ट बनेगा या राइट सब ट्री का पार्ट बनेगा। फिर से हमने चेक किया, ये आपकी रिजल्टेंट ट्री थी, तो हम यहाँ चेक करेंगे 20 इज ग्रेटर देन 10 और लेस देन 10। 20 is greater than 10, so it goes to the right subtree. 20 is greater than 15, so it goes to the right subtree. Now we check numerical value of 20 with the numerical value of 25. 20 is less than 25, then it goes to the left child of 25 और इसका नाम हो गया Z। ठीक है, अब अगेन क्या हुआ, यहाँ पर फिर से दो कंसेक्यूटिव रेड आपको मिल गए हैं। रेड ब्लैक ट्री की प्रॉपर्टी में याद हो तो चौथी प्रॉपर्टी में ये था कि कोई भी रेड नोड का चाइल्ड जो है वो रेड नहीं हो सकता है। तो 25 का चाइल्ड भी रेड हो गया, दो कंसेक्यूटिव रेड हो गए हैं। तो अब यहाँ पर रेड ब्लैक ट्री की जो प्रॉपर्टी है वो वायलेट कर रही है, तो हमें इसे फिक्स करने के लिए कुछ ना कुछ रोटेशन और केसेस रिकलरिंग लगानी पड़ेगी। पर उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है। तो उसको देखने के लिए हम इसका पहले नाम रख देते हैं, Z पेरेंट ऑफ Z। Y कौन हुआ, Y तुम्हारा ये है जो कि ब्लैक है, और ये हो गया ग्रैंड पेरेंट ऑफ Z। ये हो गया आपका ग्रैंड पेरेंट ऑफ Z। ठीक है, इसका कलर क्या है, जो Y है इसका कलर जो है वो ब्लैक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट Y क्या है, लीफ है, क्योंकि यहाँ पर कोई नोड नहीं है, तो लीफ नोड इज ऑलवेज ब्लैक। नाउ Z आपका कहाँ ऐड हो रहा है, राइट सब ट्री में ऐड हो रहा है। हम जो भी कैटेगरी चेक करते हैं वो हम यहाँ से चेक करते हैं कि वो अपने रूट के लेफ्ट में ऐड हो रहा है या रूट के राइट में ऐड हो रहा है। अगर रूट के लेफ्ट में ऐड हो रहा है तो ये वाला केस लगाएंगे, और अगर रूट के राइट में ऐड हो रहा है तो ये केस लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, जो 20 है अपने रूट के राइट में ऐड हो रहा है, तो हम इस वाले पर गए, Z इज द राइट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट। यानी कि जब हमने 20 को ऐड किया तो वो कहाँ ऐड हो रहा है, 10 के राइट सब ट्री में ऐड हो रहा है। ठीक है, तो हम इस वाले केस में जाएंगे कि Z इज द राइट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट। अब हमने देखा Z's अंकल Y इज रेड, Z का अंकल Y रेड नहीं था। ठीक है, Z's अंकल Y इज ब्लैक, यहां तक तो बात सही है, Z's अंकल Y जो है वो आपका ब्लैक है, एंड Z इज लेफ्ट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट। Z इज लेफ्ट चाइल्ड ऑफ इट्स इमीडिएट पेरेंट, अपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है। तो यहां पर क्या लगेगा आपका, केस नंबर 2। तो हम यहां लिख देंगे केस नंबर 2। ठीक है, अब केस नंबर 2 यहां एप्लीकेबल हो गया। मेक पेरेंट ऑफ Z एज न्यू Z। इस पेरेंट ऑफ Z को हमने नया नाम दे दिया Z अकॉर्डिंग टू द केस। राइट रोटेट अराउंड Z, और इस Z के अराउंड राइट रोटेशन परफॉर्म कर दिया। तो राइट रोटेशन कैसे परफॉर्म होगा, इस तरह से। अगर आपको रोटेशन या लेफ्ट रोटेशन राइट रोटेशन में प्रॉब्लम है तो मैं एक लेक्चर बना दूंगी लेफ्ट रोटेशन और राइट रोटेशन का। अभी फिलहाल हम ये समझते हैं कि ये यहाँ राइट रोटेशन कैसे होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू केस हम ये दोनों काम परफॉर्म करेंगे।
अब देखते हैं यहाँ कैसे रन करेगा। ठीक है, ठीक। अब हमने यहाँ क्या किया, जब ये राइट रोटेट होगा, ठीक है, अब जब ये राइट रोटेट होगा तो राइट रोटेशन में क्या होगा कि दिस, यहां हम नया बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया 10, ठीक, दिस 10 नोड, यहां पर आपका है 5, दिस इज 15, ठीक। अब यहां पर देखिए आपका राइट रोटेशन परफॉर्म होगा। राइट रोटेशन में क्या होता है कि नथिंग बट जस्ट पुलिंग द नोड। अब इस नोड को पुल करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर 20 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 20 आपका ऊपर चला जाएगा और उसके नीचे आ जाएगा 25, ठीक है। तो ये नोड ऐसे मूव कर जाएगा और यहां हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा आपका 25। बाकी जो नोड है वो रिमेनिंग एज इट इज रहेंगे, ठीक है। तो ये 20 और 25 यहां बन गया। अब Z किसका नाम था, Z 20 था, ठीक। अब फिर यहां पर 2 कंसेक्यूटिव, अभी यहां देखिए कि अभी भी यहां पर 2 कंसेक्यूटिव रेड हैं। जब हम इसको रोटेट करेंगे तब अभी भी यहां पर 2 कंसेक्यूटिव रेड हैं। तो अभी भी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो फिक्स नहीं हुई है। तो अब हम देखेंगे कि किस केस को ये अप्लाई कर रहा है। Z's अंकल Y इज ब्लैक, अभी हम सबका नाम रख देते हैं Z's अंकल, ये Z कौन था, Z's अंकल Y। अब Z ये है तो इसका अंकल कौन होगा, Y। Z's अंकल Y इज ब्लैक, ठीक है। दिस इज पेरेंट ऑफ Z, this is parent of Z, ठीक। According to that, Z's uncle Y is black and Z is right child। अब यहां देखिए Z's uncle, Z का अंकल Y is black and Z is right child of its parent। अपने पेरेंट का क्या है, right child है। हमें ये नया Z बना है, जब हमने रोटेट कर दिया था तो Z तो यही था, तो ये जब रोटेट हुआ तो ये Z बन गया, तो जब ये Z बन गया तो इसके अकॉर्डिंग हम सबका नाम रखेंगे। ये पेरेंट ऑफ Z होगा, ये अंकल Y होगा और ये होगा आपका ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, ठीक। तो अब हम इस पे फिर से केस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो है रेड ब्लैक ट्री की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, 2 कंसेक्यूटिव रेड आपको मिल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट Z's अंकल Y इज ब्लैक एंड Z इज राइट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट। Z's uncle Y is black and Z is right child of its parent। तो अब इस अकॉर्डिंग टू केस में हमने क्या देखा, कलर ऑफ पेरेंट ऑफ Z टर्न ब्लैक। कलर ऑफ पेरेंट ऑफ Z को हमने ब्लैक कर दिया, वो ऑलरेडी ब्लैक है, ठीक है। कलर ऑफ ग्रैंड पेरेंट ऑफ Z टर्न रेड। कलर ऑफ ग्रैंड पेरेंट टर्न रेड। तो हमने इसको अब क्या कर दिया, इसको हमने रेड बना दिया, ये आपको रेड बन गया। लेफ्ट रोटेट अराउंड ग्रैंड पेरेंट, लेफ्ट रोटेट अराउंड ग्रैंड पेरेंट। अब ये ग्रैंड पेरेंट के अराउंड हमें इसको लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करना है। अब अकॉर्डिंग टू लेफ्ट रोटेशन हमने क्या किया, लेफ्ट रोटेशन के बाद हमें क्या रिजल्टेंट मिलेगा, दिस 15, क्योंकि ये जो है यहां से लेफ्ट रोटेट हो जाएगा और ये पुल हो जाएगा, तो ये हो गया 15, ठीक। उसके बाद ये 10 जो आपका रेड बन गया था, ये 10 यहां शिफ्ट हो जाएगा, दिस इज बिकम 10, ठीक। उसके नीचे आपका 5 है, दिस इज 5, ठीक। अगेन दिस इज 20 and this is 25, ठीक है। तो लेफ्ट रोटेट अराउंड ग्रैंड पेरेंट के अकॉर्डिंग हमने यहां पर लेफ्ट रोटेट परफॉर्म कर दिया।
ठीक है, तो यहाँ आपका आ गया 25। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि रेड ब्लैक ट्री की जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करती है या नहीं सेटिस्फाई कर रही है। अब रेड ब्लैक ट्री की जो पांचों प्रॉपर्टी हम यहाँ पर देखेंगे, तो ये पांचों प्रॉपर्टी जो है वो आपकी सेटिस्फाई कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू दीज केसेस वी कैन इंसर्ट एनी नंबर ऑफ नोड इन अ एम्प्टी आर्बिट्री और एग्जिस्टिंग आर्बिट्री में हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इस तरह से केसेस ऐड होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि आर्बिट्री का डिलीशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं। ओके, थैंक यू।